Few of our products are Spondin, which is for neck and shoulder pain, cervical spondylosis. It is a patent medicine available in 30 ml pack and the most trusted brand by homeopathic doctors. We also have OsteoStrong tablets, which is for bone disorders, and OsteoStrong tablets are available in delicious orange flavor, which makes them excellent option for all age groups. In tablets, we have Arthral for arthritis and Lumbural for lumbar spondylosis, available in unique advanced pillow packaging. We have a special goodwill offer for all the doctors who have joined us today on Spondin. So if in case you are interested, you can get in touch with us. So not taking much time, I would request Dr. Nishant to share his slides and continue with his session. Thank you so much, Dr. Nishant, and over to you. Yes. Hello everyone, and I'm Dr. Srivastava from Lucknow. I'm joined today for a wonderful. And first of all, I would like to thank Spondin, Bhargava Phytolab, and especially Dr. Ishmeet and Rajneesh and Dr. Rahul Singh for their tireless effort. I mean, in this phase of lockdown and other things, they are working tirelessly. I think they are working more than what they are supposed to, and I hats off to them and their effort. Being a non-medico, they are so much dedicated. Ishmeet and Rashneesh ji, they are a lot of, it gives a lot of heart to the homeopathic cause, the first medical science for everything. And most importantly, what we have to understand is we have this thyroid disorder that we are speaking of today is one of the most commonest thing that I can tell you, which is there. And सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझना कि thyroid, why I have chosen this topic of thyroid. Last time I gave a presentation on dermatology, okay, and I've been working on dermatology for last 15 years, 10 to 15 years, and separately on vitiligo, psoriasis, tinea, fungal infection, various other diseases. But whenever I have come across, whenever there is a skin ailment, when there is a skin disease, or there is any hair related problem, alopecia areata, you're dealing with acne, simple things. When you go into detail with this, you will always find, more often than not, there is a pathology of thyroid disorder. And more importantly, when I was working on dermatology, I always wanted that next area of my work will be including the most of the systems, and which will include that hormonal therapy, which homeopathy, which can provide a permanent cure for it. Most of the dermatological diseases. And सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ इतनी खराब स्थिति के अंदर, because people are, everybody is so puzzled with this corona and various other things. और सबसे पहले मैं कहूँगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है. आखिर उसकी ही मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. और ये कोशिश हम होम्योपैथी के लिए करते रहेंगे, चाहे समय कोई भी हो. हम लोग अपना पढ़ाई, हम लोग का क्लिनिकल नॉलेज शेयर करना कभी हम रोकेंगे नहीं. And in this continuation, I present this webinar on thyroid disorders. आज बुरा समय है, तो क्या हुआ, कल वक्त अच्छा भी आएगा, वक्त बदलेगा भी. और सबसे important, what I always believe is, tough situations always create stronger people. That it's very easy. लहरों के साथ तो सब लोग चल सकते हैं, लेकिन इंसान वो है
जो लहरों के अगेंस्ट चले और लहरों को चीरता हुआ आगे चले। तो हम लोग अपनी इस कोशिश में जरूर कामयाब होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं थायराइड के लिए कहना चाहता हूं कि अगर हम थायराइड डिसऑर्डर जो आजकल स्पेशली फीमेल्स के अंदर, हम फीमेल्स की अगर बात करें 13 इयर्स की उम्र से लेके स्पेशली फर्स्ट प्रेगनेंसी तक इतना कॉमन हो गया है। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद इतने ज्यादा कॉमन है थायराइड डिसऑर्डर्स कि मैं आपको बता नहीं सकता। एंड आई वांट टू गिव माय क्लिनिकल एक्सपीरियंस टू एवरीवन about this thyroid, which I have been working more or less in my dermatological days also, when I used to study various other dermatological diseases. The background has always been with thyroid. Like it can be acne, it can be hair fall, alopecia areata, and what not. The pathology is mostly a thyroid disorder, hypothyroid or hyperthyroid, that we all know. Now the patient, we always say to the sir, I can't keep calm, my thyroid is out of control, and because of that I'm having n number of problems. And as we know, how the thyroid hormones are produced, hypothalamus, pituitary, and thyroid gland, thyroid releasing hormones which stimulate thyroid stimulating hormone T3 T4 are produced. And there are n number of problems: fatigue, tiredness, cold hands, hair fall, constipation, cold feet, psychiatric symptoms. I mean, I can't tell you. थायराइड का इतना ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि आप एक थायराइड को से आप कम से कम 50 बीमारियां ठीक कर सकते हैं, 50 डिजीजेस। और उसी तरह वाइस वर्सा, इन द सेम वे 50 बीमारियां का उत्पत्ति जो हो रही है वो थायराइड से हो रही है। ये इट्स वाइस वर्सा एक्चुअली। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम थायराइड को टैप करते हैं, थायराइड डिजीजेस को हम कंट्रोल करते हैं, तो डेफिनेटली हम और सब बीमारियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आई वांट टू टेल यू सम क्लिनिकल एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। यू नो, पेशेंट आते हैं, कहते हैं सर मुझे एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है। यू नो, 80% of the cases, they always have psychiatric symptoms, neurological symptoms. They have a thyroid in background. Patient करता क्या है? Patient जाता है या न्यूरो के पास जाता है या साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, और वो सिर्फ चक्कर लगाता रहता है। चाहे वो बीमारी आपके साइकेट्रिक की प्रॉब्लम हो, न्यूरो की हो, चाहे आर्थराइटिस की हो। आर्थराइटिस आई वांट टू डिफाइन, जब भी किसी का थायराइड लेवल बढ़ता है तो हड्डी से कैल्शियम निकल के वो ब्लड के अंदर जाता है, और हड्डियां जो है वो ब्रिटल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। दे आर मोर प्रोन टू आर्थराइटिस, और आर्थराइटिस के साथ फ्रैक्चर्स आर वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। और इंपॉर्टेंट यही है हमें समझना कि हम लोग ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगे, साइकेट्रिक्स के पास जाएंगे और डॉक्टरों के चक्कर लगाते जाएंगे, लेकिन हम एग्जैक्टली हम इसका कोई निजात नहीं पा पाएंगे, और सारे साइड इफेक्ट जो है वो हम झेलेंगे। People should come to homeopathy because answer lies in homeopathy. आप अदर बीमारियों के लिए, जैसे मैंने यहाँ लिस्ट किया है, चाहे एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, हेडेक हो, माइग्रेन हो, आर्थराइटिस हो, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो, लिकोरिया, वेट गेन, वीकनेस, फाइब्रॉइड, सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट, ब्रेस्ट में सिस्ट, फाइब्रोएडिनोमा, एक्ने, स्किन प्रॉब्लम्स, डैंड्रफ, एलोपेशिया, पेन इन काफ्स, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, ये सब का बैकग्राउंड जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम थायराइड दिया जाता है। और हम सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कभी हड्डी वाले के पास, कभी स्किन वाले के पास। पेशेंट परेशान रहता है, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों खा खा के, एंटी एंजाइटी पिल्स लेके, हेडेक और माइग्रेन के लिए पेन किलर खा के। न्यूरो के पास जाइए, वो आपको जो है आपको सीटी स्कैन कराएगा, एमआरआई कराएगा, निकलेगा कुछ नहीं। और दे नेवर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन, इतनी चीजों में हो जाता है और किसी ने एक सिंपल सा थायराइड प्रोफाइल नहीं कराया होता है। तो एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमें इतनी बीमारी, इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीमारियां जो मैंने आपको एनलिस्ट की हैं, तो प्लीज अपने पेशेंट्स को जरूर थायराइड प्रोफाइल कराने के लिए प्रेरित करें। आस्क देम टू गो फॉर दिस, बिकॉज हम ऑर्थोपेडिशियन के पास जा रहे हैं आर्थराइटिस के लिए, चाहे हम एंजाइटी के लिए जा रहे हैं, चाहे माइग्रेन के लिए जा रहे हैं, चाहे फाइब्रॉइड सिस्ट के लिए जा रहे हैं, एक्ने के लिए जा रहे हैं, हेयर फॉल के लिए जा रहे हैं, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम के लिए जा रहे हैं। अगर हम सिंपल सा थायराइड का अगर एक टेस्ट करा लेंगे
तो हमें बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये हो क्यों रहा है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जो फीमेल्स में ये थायराइड की प्रॉब्लम सबसे कॉमन है, इसलिए क्योंकि जो पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेनोपॉज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मेनार्की 13 इयर्स पर जब पीरियड्स शुरू होते हैं, जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सब आपके जो है, अगर थायराइड गड़बड़ होता है, उसके लेवल्स हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, इम्बैलेंस होता है, तो हमें ये सारे सिम्टम्स आते हैं। फीमेल्स के अंदर सारे हार्मोन्स एकदम कड़ी की तरह जुड़े हुए हैं, जैसे माला होती है, माला की तरह कड़ी जुड़ी होती है। अगर हम एक भी कड़ी अगर हमारी टूटती है तो पूरी माला बिखर जाती है। ये हमको समझना है। हमको फाइब्रॉइड हो सकता है, ओवेरियन, हमको फाइब्रॉइड आपके जो है सिस्ट हो सकता है, फाइब्रोएडिनोमा हो सकता है, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, लिकोरिया हो सकता है, और फीमेल प्रॉब्लम्स तो स्पेशली जिसमें वेट गेन मैं जरूर कहूंगा, डॉक्टर साहब मैं पानी पीती हूँ, मैं इतना डाइट करती हूँ, मैं इतना एग्जर्ट करती हूँ, मैं इतना आप जिम करती हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू लूज द वेट। वेट गेन इज वन ऑफ द प्राइमरी थिंग्स। ये चीज हमें समझना है। वेट गेन जो होता है वो एक्चुअली वेट गेन नहीं है, इट्स एक्चुअली रिटेंशन ऑफ वाटर, और स्वेलिंग हो जाती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वेट बढ़ने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम लोग के जो हमें इसको पकड़ने के लिए फैमिली हिस्ट्री जरूर देखिए आप। अगर किसी को भी थायराइड डिसऑर्डर्स है तो उसके मदर का, उसके जितने भी पैटर्नल साइड है, जरूर ट्रेस बैक करिए। आपको हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको फैमिली हिस्ट्री थायराइड के लिए ना मिले। पेशेंट जरूर आपके पास आएगा, कहेगा सर मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, स्वेलिंग हो रही है, मुझे उठने का मन नहीं करता है, मुझे काम करने का मन नहीं करता है, मैं सो के उठती हूँ, मैं 11-12 बजे तक सोती हूँ, मेरी नींद कंप्लीट नहीं होती है, और एग्जॉशन की फीलिंग आती है। एग्जॉशन, जैसे लगता है कि इतना काम किया हो, सुबह स्कूल है तो स्कूल जाने का मन नहीं करेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, कोई अगर उठाएगा तो आपको बिल्कुल एकदम चिढ़ होगी कि हम उठना नहीं चाहते। इट्स such a wide disease that I can't tell you. और there are n number of autoimmune disorders also. Hashimoto disease भी है इसके अंदर, thyroiditis भी है इसके अंदर, autoimmune thyroiditis. There are n number of things that I can tell you. तो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस जरूर है। अगर आप इन चीजों में से इतने साइंस जो मैंने आपको बताया, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्मोनल चेंजेस, वेट गेन, फैमिली हिस्ट्री, बाउल डिफिकल्टीज, कॉन्स्टिपेशन इज वन ऑफ द प्राइम रेड लाइन सिम्टम्स ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स, नेक डिस्कम्फर्ट, तो जरूर थायराइड टेस्ट कराइए, बिकॉज पैथोलॉजी थायराइड की आपको जरूर मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है डिजेशन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, एज आई टोल्ड यू, फटीग, menstrual irregularities and fertility issues. डॉक्टर साहब मेरे थायराइड बहुत समय से बिगड़ा हुआ है, मुझे फाइब्रॉइड है, ओवेरियन सिस्ट है, और इसकी वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। फर्टिलिटी इश्यूज दैट आई वांट टेल यू, अगर हम फर्टिलिटी इश्यूज के अंदर अगर हम देखते हैं कि अगर माँ बच्चे अगर बेयर नहीं कर पा रही है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसका थायराइड डिस्टर्ब होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आज के समय है स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस तो आप देखिए हैं दैट वी कैन नॉट हाइड अपॉन, वी कैन ट्राई टू रिड्यूस इट बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कहते हैं थायराइड के अंदर कि आदमी पानी भी पीता है तो भी वजन बढ़ जाता है, क्योंकि खाने पीने से ये इसका वेट गेन नहीं होता है। द वेट गेन इज नॉट ड्यू टू द बैड लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, इट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट है वेट बढ़ता चला जाएगा, आप घुटनों पे वजन बढ़ता चला जाएगा, आर्थराइटिस होता चला जाएगा, हेयर प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी, वजन होगा, स्वेलिंग हो जाएगी बॉडी के अंदर, एंड यू विल not be able to reduce your weight at any cost unless and until your thyroid is checked, your thyroid is controlled, or thyroid is cured. और एक चीज मैं आपको बता दूं, थायराइड के अंदर आप चाहे कहीं चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, लंदन चले जाइए, घूम फिर के हम अगर कोई अगर थायराइड की दवाइयां हैं तो सिर्फ 2 दवाइयां, एल्ट्रोक्सिन, थायरोनॉल, वहीं पे सब कुछ खत्म हो जाता है, वहीं पे। तो यहीं से हमारी होम्योपैथी शुरू होती है। और मैं हर जगह कहता हूं, मैं आज भी कहूंगा कि अंग्रेजी या अदर पैथीज जहां खत्म होती है, होम्योपैथी से शुरू होती है। तो पीपल विल टेल यू, जिस दिन आपका बैड हेयर डे है, फीमेल्स must be very acquaintance with this, कि बैड हेयर डे जिसको कहते हैं वो भी थायराइड की वजह से होता है।
थायराइड का आपका जो है लेवल्स गड़बड़ होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एंड स्ट्रेस की जहां बात है, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे किस किस ऑर्गन्स को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये आप देखिए। हमारे जो थायराइड है ह्यूमिलिएटेड, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी, लिवर है एंगर रेज की वजह से, हार्ट है लैक ऑफ जॉय सैडनेस की वजह से, these are different organs which are affected by our emotions, and our emotions are very important. Joy, fear, anger, grief, these are all that we go through. Rejections and stress and emotional weeping, these things are annoyed, these symptoms are very well given and stated in our repertory. And repertory के में जितने भी हमारे एक्सप्रेशंस हैं वो एक रूब्रिक के फॉर्म में बनाए गए हैं, जिससे हमारी रिपर्टरी बनी हुई है। और हमारे हार्मोन्स कैसे हमारे इमोशंस को इफेक्ट होते हैं वो आप देखिए, मेनिया के अंदर, एंजाइटी के अंदर, क्यूरियोसिटी के अंदर, excitement, stress, autism, fear, these are different hormones, how they play into it when the stress is prolonged. अगर long time तक अगर stress है तो कैसे हमारे hormonal changes होते हैं। ये हमारे inspiration, grief, anxiety, these are types of emotions that we go through day in and day out. And this is the way how we react. We are sometimes happy, sad, fearful, surprised, fearfully surprised, angry, disgusted. These are various हमारे coping mechanism, जिसको हम लोग psychiatry में कहते हैं. These are coping mechanism, how we deal and react to the stress. This is important thing. And now coming to the two main things that I want to tell you is hypothyroidism and hyperthyroidism. We all know, I'm not going much in detail with all this because most of the people are doctors, and we can find out these symptoms: enlarged goiter, increased heart rate, or fatigue, sensitivity, cold, dry skin. और hyperthyroidism में उल्टा हो जाता है, हमारा जो heart palpitation, हमारा tremors, heat intolerance, sleep disturbances, weight loss होता है इसमें. हाइपर में वेट लॉस होता है, हाइपो में वेट गेन होता है. These are various things, and these two gentlemen are telling you how intolerant they are to cold and how intolerant they are towards heat. एक hypothyroidism है. To this toxic goiter that we are dealing with, you can see exophthalmos. इस ladies की आंख देखिए, exophthalmos मतलब आंख एकदम बाहर आ जाता है from the sockets. लगेगा कि जैसे the eyes are so protruding outside. This is called exophthalmos. I'm not going much in detail, but this is a very important thing that has to be told. Exophthalmos is a grave condition and which is very indicative of thyroid disorders. Hyperthyroidism में tiredness, emotion liability, heat intolerance, weight loss, excessive appetite, बहुत खाने का मन करेगा आपको, palpitation, घबराहट, बेचैनी, tachycardia, hotness, exophthalmos, I've told you, agitations and various other things that we come across. और एक चीज मैं जरूर सबको कहूंगा, जैसे मैंने बताया कि फीमेल्स के अंदर माला की तरह, जैसे माला होती है, एक एक हार्मोन्स अटैच्ड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, एक गड़बड़ हुआ तो वो पूरी माला को तोड़ देता है, पूरा हार्मोनल सिस्टम इम्बैलेंस में चला जाता है. तो दैट इज इंपॉर्टेंट. और इसी वजह से हम जब हार्मोनल सिस्टम इम्बैलेंस होता है, पीसीओडी हो गया, फाइब्रॉइड हो गया, ये सब बहुत कॉमन कंडीशन. और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जब हम हाइपोथायरॉइड की बात करते हैं या थायराइड रिलेटेड और पीसीओएस को देखते हैं, तो कभी भी मेरे पेशेंट आए तो आप एक तो सबसे पहले उनका थायराइड प्रोफाइल आपको कराना ही कराना है. सेकंड आपको जो कराना है उनका आपको अल्ट्रासाउंड कराना ही कराना है. मोस्ट प्रेफरेबली अगर फीमेल मैरिड है तो टीवीएस अल्ट्रासाउंड कराइए. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. टीवीएस अल्ट्रासाउंड वो ज्यादा इंडिकेटिव होता है, ज्यादा एक्यूरेट होता है, विल गिव यू more better understanding of the PCOS or fibroid or any female irregularities. तो 25% केसेस में PCOD और hypothyroid वो बहुत ही ज्यादा क्लोज चलता है. and you can see these things that are there. PCOS and low thyroid, difficulty losing weight. एक दो चीज को छोड़ दीजिए, these are so hair thinning, depression, difficult getting pregnant,
इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, फटीग, मैस्कुलाइजेशन, कोल्ड टेम्परेचर, शुगर, ये एक दो पॉइंट को छोड़ के और सारे पॉइंट आपके एकदम मैच टू मैच करते हैं आपके पीसीओएस और हाइपोथायराइड के अंदर। नाउ आई वांट टू टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे होम्योपैथी के एक्सपीरियंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है कि हमने पेशेंट को आया, पेशेंट का हमने टेस्ट कराया और उसका थायराइड की रिपोर्ट आई जो सामने आई, जिसमें TSH बढ़ा है, T3 T4 बढ़ा है, वो जो भी बढ़ा हो हम लोग उसको हाइपरथायराइड और या हाइपोथायराइड में उसको हम इनलिस्ट करते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात हमें एक चीज समझनी है कि कभी कभी क्या होता है कि 5.5 जैसे TSH है फॉर एग्जाम्पल, और पेशेंट आता है 5 पे, TSH 5 है उसका, 4.8 है उसका, तो हमें लगेगा ये नॉर्मल है, हमें इसको वी कैन नॉट लेबल एज हाइपोथायराइडिज्म, राइट। तो होता क्या है एलोपैथी में, तो ये उन लोगों ने एक नॉर्म क्रिएट कर दिया जिसको कहते हैं ना लकीर के फकीर, है ना, वैसे नॉर्म क्रिएट कर दिया है। 5.5 के नीचे होगा तो हम इसको थायराइड हाइपोथायराइड नहीं मानेंगे, अगर बड़ा होगा तभी हम मानेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी है, विच इज नॉट। होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी सिम्टम्स की साइंस है, लक्षणों की साइंस है, और हमको सिम्टम्स पकड़ने हैं। अगर पेशेंट का थायराइड नॉर्मल आता है, उसके बावजूद patient is showing the symptoms of hypothyroidism or hyperthyroidism, we have to consider it as like this, because this is a clear picture of subclinical thyroidism. सबक्लिनिकल थायराइडिज्म जरूर समझिए, ये बहुत जरूरी है। और मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को इस पे फेल होते हुए देखा है मैंने। वो जब तक मानते नहीं कि रिपोर्ट के अंदर बढ़ा नहीं आएगा थायराइड, हम तब तक इसको थायराइड नहीं मानेंगे। एक तो पहले उनके पास कोई दवा नहीं, जीवन की अंतिम सांस तक आपको दवा खानी है, एल्ट्रोक्सिन, थायरोनॉल, जीवन की अंतिम सांस तक दवा खानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर केसेस में अगर बॉर्डर लाइन थायराइड आता है, बॉर्डर लाइन स्पेशली मैं कह रहा हूं, सब क्लिनिकल थायराइडिज्म ये होता है, और जिसमें क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ डिजीज विदाउट सिम्टम्स, विदाउट ऑब्वियस सिम्टम्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। डिजीज है लेकिन सिम्टम्स अभी शुरू हो रहे हैं, प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन हम एज अ होम्योपैथ वो हमारा काम है कि वो सिम्टम्स को पकड़े और उसका ट्रीटमेंट हम उसी समय शुरू करें। तभी हम जो आज TSH बॉर्डर लाइन है, वो 6 महीने बाद वो बॉर्डर लाइन क्रॉस करके बढ़ जाएगा, तो वो क्लिनिकल कंडीशन के अंदर आ जाएगा। अभी सब क्लिनिकल है, तो सब क्लिनिकल है तो अभी ठीक करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो हमें वेट नहीं करना है, वी हैव टू गिव द पेशेंट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर सब क्लिनिकल थायराइडिज्म, क्योंकि होम्योपैथी सिम्टम्स की दवा है। आप सिम्टम्स को पकड़िए, आप सिर्फ लैबोरेटरी मेजरमेंट्स के ऊपर मत जाइए। सब क्लिनिकल थायराइडिज्म में जो मैंने आपको बताया, 60 to 80% disorder is associated with anti-thyroid peroxidase antibodies. ये सब हाशिमोटो डिजीज जो मैंने ऑटो इम्यून का नाम लिया था पहले, ये चीज सब क्लिनिकल थायराइडिज्म अगर शुरू में पकड़ लिया जाए तो बहुत अच्छा और बहुत जल्दी ये ट्रीट हो जाएगा, जैसे हाशिमोटो डिजीज होता है। और हमारा क्या है लाइफस्टाइल, कैसे इसको ट्रीट करेंगे? एक्सरसाइज, ईट हेल्दी, healthy lifestyle, drinking a lot of water, reduce stress, and सबसे important है homeopathy, which nobody has an option. अगर थायराइड का कोई क्योर है तो होम्योपैथी में है, वरना नहीं है। पहली बात, एक बार थायराइड की पेशेंट की अगर दवा शुरू हो गई, उसके सिम्टम्स बढ़ने लग जाते हैं, पहले 25 mg, फिर 50 mg, फिर 75 mg, 100 mg, 125 mg, आज तक कोई पेशेंट खराब जो है ठीक होता मैंने नहीं देखा है। सबके सिम्टम्स खराब होते हैं, दवा कुछ समय तक कंट्रोल करती है, फिर जब सिम्टम्स उसके भी ऊपर चले जाते हैं तो ये कन्वीनियंटली 100 से 125, 150 ऐसे ही डॉक्टर लोग बढ़ाते रहते हैं। और इसके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा हैं कि होता क्या है कि जब रेडीमेड, चाहे आप फॉर एग्जांपल डायबिटीज का ही देख लीजिए, आप इसी तरह बढ़ता है और एंटीबायोटिक क्या होता है, इंसुलिन पे आ जाते हैं, राइट। तो इसी तरह थायराइड का भी होता है, जब आपको एक्सटर्नली आपको हार्मोन मिल रहा है तो बॉडी जो आपको हार्मोन बना रही है वो भी बनाना छोड़ देगी, वो भी बनाना छोड़ देगी। और
आप देखेंगे मोर ऑफन देन नॉट आपको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी कि आपका एक तरह से आप दवा खा रहे हो, आपके लेवल्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, या मान लो कंट्रोल भी हो रहे हैं, लेकिन आपके वेट बढ़ता चला जा रहा है, आपका माइग्रेन होता जा रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, पीरियड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, और फाइब्रॉइड, ओवेरियन सिस्ट, ये सब होता चला जा रहा है विथ नो कंक्लूजन। हम किसी कंक्लूजन में नहीं आते। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज समझने वाली है, जो मैंने बात कही, सिर्फ एल्ट्रॉक्सिन और थायरोनॉम जो कॉमनली प्रेस्क्राइब मेडिसिन है, कहीं भी आप चले जाइए, हम होम्योपैथी में एक, हम मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट तो हम लोग करते ही हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ही पूरे बॉडी को एज अ होल कंसिडर करता है और थायराइड को ठीक करता है। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो अदर हमारी जो एक्यूट मेडिसिन है, जो हमारी पैथोलॉजिकल मेडिसिन भी है, आप उसमें देखिए कितनी दवाइयां हैं। कैलकेरिया काप, कैलकेरिया आयोड, आप देखिए थायरोडिनम, एन नंबर ऑफ मेडिसिन, आयोडम, कैलकेरिया आयोड, आई मीन देयर आर एन नंबर ऑफ, स्पॉन्जिया, इतनी दवाइयां हैं हमारे पास कि हम लोग लिमिटेड नहीं है। हमारे पास इस बीमारी के लिए लाखों दवाइयां हैं, हजारों दवाइयां हैं। और इंपॉर्टेंट यह है कि इनका बहुत एक्सेसिव और बहुत शार्प जो है इसका इफेक्ट होता है। आप जब भी सिंपल आप थायरोडोनम ही खिलाएंगे अगर, तो उससे भी बहुत जल्दी TSH, मैंने बहुत से केसेस में देखा है कि कम होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पूरा केस का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, पेशेंट का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ के उसको मेंटल्स, फिजिकल जनरल्स, ये सब पे प्रेस्क्राइब करना है, और तभी हम उसको क्योर कर देंगे। क्योंकि सिर्फ लेवल्स कम करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमको पेशेंट को क्योर करना है, हमें उसको ठीक करना है, परमानेंट ठीक करना है। हम ठीक कब करेंगे? जब हम एक्यूट मेडिसिन और पैथोलॉजिकल मेडिसिन के अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देंगे, पूरा केस टेकिंग करेंगे। एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, आई टेल यू एवरीवन। कभी कभी मैं डॉक्टरों को देखता हूं, दे प्रेस्क्राइब सो हैफिजडली कि डॉक्टर साहब मैं यहां काम करते थे, उसकी वहां पे वो दिया जाता था, इसलिए मैंने वहां दे दिया। मुझे हेयर फॉल में ये चीज दी जाती थी, आई यूज्ड टू वर्क समवेयर, मैंने वो दवा वहां दे दी, वहां पे भी देते थे तो मैंने भी देना शुरू कर दिया। इज दिस लॉजिक? आई हैव सीन सो मेनी स्पीकर्स इवन टेलिंग दिस कि आई मीन दिस शुड नॉट बी योर वे ऑफ, दिस शुड नॉट बी द अप्रोच ऑफ योर क्लिनिकल एक्सपीरियंस। हमने जो पढ़ाई की है और नॉन पढ़ा है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, अगर हम हर केस पे मेहनत नहीं करेंगे, रिपर्टाइज नहीं करेंगे, केस का एनालिसिस नहीं करेंगे, इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, तो हम भी एलोपैथ्स की तरह या अदर जो सिर्फ सप्रेसिव ट्रीटमेंट करते हैं, हमें वहां तक रुकना नहीं है। हमको पेशेंट को क्योर करना है। हैनेमन साहब ने क्या कहा था? आइडियल क्योर की बात की थी उन्होंने, आइडियल क्योर। हम आइडियल क्योर, भले समय लग सकता है, लेकिन हमें आइडियल क्योर के लिए वर्क करना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम कमिंग टू अ वेरी रीसेंट केस ऑफ माइंड, और ये केस जो है अभी इसी फरवरी में था। and this patient was came to me during all this ये lockdown period के आसपास ही इसका follow up हो रहा था, and he started having hair fall from a particular area। एक पैची स्किन होने लग गई थी, और उस पैच के अंदर बाल गिरने लग गए थे। हेयर फॉल फ्रॉम लास्ट 6 months, ड्राइनेस, स्केलिंग, इचिंग, हेयर फॉल फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। एलोपेशिया एराटा है ये डायग्नोसिस के लिए, और आप देख सकते हैं इसका पूरा केस टेकिंग लिया गया, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, वेरियस थिंग्स वर टेकन, एंड यू कैन सी जब मैंने इसको कहा कि अपना थायराइड टेस्ट करा लो, तो सी द लेवल्स ऑफ थायराइड 139, कैन यू बिलीव दिस? 139 थायराइड। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, TSH जो होता है वो मेल्स के अंदर, फीमेल्स में तो थोड़ा भी बढ़ जाए तो इसके सिम्टम्स बहुत प्रोनाउंस्ड आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन अगर मेल्स में बढ़ता है तो सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, धीरे धीरे वो शो करने लगता है, धीरे धीरे। और देखिए जब इसका थायराइड टेस्ट कराया तो 139 TSH आया, एंड यू कैन सी इसका जब लाइफ स्पेस लिया गया, द पेशेंट वाज अ लोनर इन चाइल्डहुड। एक पूरा इसका बैकग्राउंड जब हमने ट्रेस किया, लैक ऑफ अटेंशन फ्रॉम पेरेंट्स, ही वाज वेरी फियरफुल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर्स वेर सीन, फियर ऑफ लोनलीनेस, fear of darkness, lizards, fear of examination, stage fear, जो
पेशेंट वॉज वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन उसको फियर्स बहुत थे, उसको स्टेज फियर बहुत था. ऑल्दो बीइंग इंटेलिजेंट, he is not able to express himself on a stage or on a viva or during any examination or any presentation for that matter. तो इस नर्वसनेस बहुत ज्यादा थी. और जब और सब चीजें इसके अंदर कंसिडर की गई तो इमेज कॉन्शियस जो मैं आपको कहूं, मैंने आपको एक दो केसेस में पहले भी बताया था कि इनकी फैमिली इस पर्सन की वो बहुत एजुकेटेड, बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से थे, और उनको हर समय ये लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी. उसका चाइल्डहुड ऐसे बीता है. इमेज कॉन्शियस होना, और इमेज कॉन्शियस वो हमारी होम्योपैथिक दवाइयों के अंदर बहुत प्रोमिनेंट दवाइयां हैं जिसमें इमेज कॉन्शियस हुआ है. और इसके अंदर एंजाइटी एंड वेरियस थिंग्स, नर्वसनेस, ये सब इसके अंदर पाया गया. और स्पेशली प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन ऑन पाम्स एंड सोल्स, प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन. और जब हम देखें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एवर्जन टू मेंटल एंड फिजिकल वर्क, these were their depression, anxiety, these were the symptoms that were taken, and physical generals were taken in this. और मैं एक चीज जरूर कहूंगा फिजिकल जनरल्स के बारे में. देखिए मेंटल्स जो होता है, मेंटल्स हर आदमी का इंटरप्रिटेशन अलग होता है. आज के टाइम में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हो गए. कोई किसी एक ही रूब्रिक का लोग अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स में उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं, अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं. ठीक है, तो आप भी हो सकता है कि आप एक रूब्रिक को जो कैच करें या पकड़ें, तो आपका भी इंटरप्रिटेशन जो हो सकता है कभी सही हो सकता है, कभी गलत हो सकता है. लेकिन आई ऑलवेज टेल एवरीवन दिस थिंग कि जो हमारे फिजिकल जनरल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हॉट पेशेंट है, अगर थर्स्ट है उसकी, हॉट एंड चिली है अगर वो, ठीक है, उसके एवर्जन है, क्रेविंग है, अगर ये सब चीजें हैं, एग्रेवेशंस है, हम मेंटल्स में तो एक बार रूब्रिक सिलेक्शन में धोखा खा सकते हैं. सबकी नॉलेज अलग हो सकती है, सबके स्कूल ऑफ थॉट्स अलग होते हैं, सबके रूब्रिक्स का इंटरप्रिटेशन, मेंटल्स का इंटरप्रिटेशन भी सबका अलग होता है. लेकिन फिजिकल जनरल्स जो होते हैं वो आपके चेंज नहीं होते हैं. ये मैं हर बार सबको कहता हूं. और लोग इसको आजकल लोग मेंटल्स की तरफ जा रहे हैं. बहुत अच्छी बात है, मेंटल्स पे प्रिस्क्रिप्शन करना बहुत अच्छा है, लेकिन इन द सेम वे फिजिकल जनरल्स की इंपॉर्टेंस भी समझना बहुत जरूरी है. क्योंकि वी कैन नेवर गो रॉन्ग विद फिजिकल जनरल. हम अगर हॉट पेशेंट है तो वो हॉट ही रहेगा, कोल्ड है तो वो कोल्ड ही रहेगा, क्रेविंग फॉर सॉल्ट है तो सॉल्ट ही रहेगा, अगर क्रेविंग फॉर स्वीट है तो स्वीट ही रहेगा. दीज आर रेड लाइन सिम्टम्स. हमारा प्रिस्क्रिप्शन फिजिकल जनरल्स अगर स्ट्रॉन्ग मिल जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या सिमिलिमम तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है. तो प्लीज डू नॉट ओवरसी फिजिकल जनरल सिम्टम्स. एंड इंपॉर्टेंट ये रूब्रिक्स इसके अंदर लिए गए, टिमिडिटी, forsaken feeling, anxiety, anticipation, delusion, everything will fail. जो मैंने आपको बताया था इमेज कॉन्शियस था और इसको लगता था कि सब गड़बड़ ही होगा, सब गड़बड़ होगा, मैं कोई भी काम करना चाहूंगा वो गलत होगा, वो सही नहीं होगा. तो इंपॉर्टेंट ये भ्रम हो उसको अंदर बैठ गया था. एंड he was very obstinate also. Repertorization was done and applied mathematica मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि I have already explained it. Silesia was given in this. And you can see the result slowly इस पेशेंट के कितने फॉलिकल्स आना शुरू हो गए विद इन वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम. जो पूरा पैची लॉस था, पूरा एकदम एक पूरा सिक्के की तरह, वहां से पूरे बाल गायब हो गए सिक्के की तरह, और इसके अंदर फॉलिकल्स आना शुरू हो गए. यू कैन सी बाय योरसेल्फ. एंड आप देखिए इसका टीएसएच जब कराया गया तो टीएसएच 11.47 आ गया, 11.47. TSH level to remind you 139 था. Unimaginable. I have the reports with, or I have a habit of keeping the reports along with everything. तो जब second time कराया तो 11.47 आया, बढ़ा हुआ. और जब second follow up हुआ तो आप देख सकते हैं कि almost पूरे बाल इसके आ गए. ये जो एरिया पूरा जिसमें बाल बिल्कुल नहीं थे, एलोपेशिया एराटा की कंडीशन थी, वो पूरे बाल इसके आ गए. एंड थर्ड आप जब मैंने कराया तो 11 से 7.47, TSH 7.47 पे आ गया. और यू कैन सी द कंडीशन, इस थर्ड फॉलोअप के अंदर पूरे बाल आ गए. जस्ट सी द डिफरेंस ऑफ थायराइड. बिफोर इट वाज 139 एंड आफ्टर इट वाज 7.47 एंड यू कैन सी द चेंज.
वरना एलोपेशिया एराटा में स्टेरॉइड दिया जाता है, स्टेरॉइडल इंजेक्शंस लगाते हैं, स्टेरॉइडल इंजेक्शंस, और जितना उसके अंदर इंजेक्शन पड़ता है लगाते हैं, बाल कुछ फॉलिकल्स आएंगे और फिर ऐसा गायब होंगे कि पूरा बॉल्डनेस आ जाएगी, पूरी बॉल्डनेस आ जाएगी, जो मैं आपको नेक्स्ट केस में दिखाऊंगा, जो पेशेंट हैज गॉन थ्रू ऑल दिस. ओके, तो यू कैन सी द चेंज. कमिंग टू द नेक्स्ट केस जो मैं आपको कह रहा था, अब ये पेशेंट जो मेरे पास आई थी, शी हैड कम फ्रॉम मेरठ. ओके, एंड इसने सब कुछ किया था, सब कुछ हुआ था, इसके स्टेरॉइडल इंजेक्शंस भी लगे, सब कुछ हुआ, और शी केम टू माय क्लिनिक. शी स्टार्टेड क्राइंग. मैंने एक केस ऐसे ही पहले कोई मेरठ का ही था जो मैंने ठीक किया था, और उन्होंने ही ये केस को रेफर किया था मेरे पास. और इस केस के बाद क्या हुआ कि जब से वो पेशेंट मेरे पास चेंबर में आती है, वो रोने लगती है. तो होता क्या है कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाई द फीमेल इज क्राइंग. शी वाज वेयरिंग अ विग. Let me tell you, she was wearing a wig at that time, or she removed the wig in front of me, and I saw the face of this patient. Even the eyebrows, आपके जो eyebrows होते हैं, follicles होते हैं, वो सब झड़ गए थे इसके. एलोपेशिया टोटालिस में ये पेशेंट आ गई थी, एलोपेशिया टोटालिस. एंड स्टेरॉइडल इंजेक्शंस वेर गिवन. जब पैचेस थे तो बहुत स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन दिए गए, और कुछ टाइम बाल आते थे, फिर धीरे धीरे करके पूरे बाल चले गए. इवन बॉडी हेयर्स डिसअपियर्ड इस केस के अंदर. एंड you can see TSH level was 11.12, and this was taken, and hypothyroidism was diagnosed, and these rubrics were considered. ailments from pregnancy after, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो प्रेगनेंसी के बाद से हेयर फॉल शुरू हुआ था. एंगर ऑफ सप्रेशन बहुत था, डोमिनेटिंग नेचर था, एफेक्शनेट, ईगोटिज्म, एम्बिशियस एंड डिजायर स्वीट्स. आई वांट टू टेल यू दिस, फिजिकल जनरल, स्ट्रॉन्ग फिजिकल जनरल, ये रिपर्टाइज किया गया. और जब हम लोगों ने इसको रिपर्टाइज किया, तो रिपर्टाइजेशन के बाद जो लाइकोपोडियम 30 वाज प्रेस्क्राइब्ड इन दिस. और आप देखेंगे फर्स्ट फॉलोअप के अंदर कितने बाल इसके आगे. यू कैन सी कि धीरे धीरे फॉलिकल्स आना शुरू हो गए. एंड सी लाइकोपोडियम 30 कितना फास्ट आपका रिजल्ट आया. और आप देखेंगे इन सब्सिक्वेंट फॉलोअप धीरे धीरे सारे बाल आ गए, इवन फॉलिकल्स भी बाहर आ गए. आपके जो भव थे वो भी जो गिर चुके हुए थे वो भी आ गए. So this is the magic of homeopathy that I was talking about. So please consider physical generals also. That is very important. और लाइकोपोडियम जैसे मैं आपको बता रहा था, जो डोमिनेटिंग नेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. डोमिनेटिंग नेचर जो होता है वो लाइकोपोडियम का बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो डोमिनेटिंग, ईगोटिज्म, ये सब बहुत इसके अंदर प्रोनाउंस्ड है. Now coming to one more case of this alopecia areata, this is, and loss of hair. जैसे मैंने उस केस में आपको दिखाया था, excessive lethargy, weakness, anxiety, palpitation, restlessness, headache, ये सब symptoms इसके अंदर मौजूद थे, सारे symptoms. और सब कुछ तो किया गया, लेकिन इसका थायराइड जांच नहीं कराया गया. And when the whole case was taken, past history, catches cold easily, change of seasons, aggravate, these were the symptoms that were taken. And T4 symptoms were 12.11, 12.1. T4 was increased in this case. And mental and life space were taken. Very intelligent, shy nature, emotional, timid and yielding. Lack of confidence, anticipatory anxiety before performance, extremely fearful, fear of darkness, rats, fear of being alone, extremely fear of heights, aversion to crowds, I mean delusion that she will fail in the exam, tremendous stage fear, and anticipatory anxiety मतलब क्या होगा, कैसे होगा, जो एक उतावलापन, एंटिसिपेशन, फ्यूचर का एंटिसिपेशन, प्रिडिक्शन, ये एंटिसिपेटरी एंजाइटी इस केस के अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी. एंगर सप्रेशन भी था. शी वाज अ लिटिल कावर्ड
एंड वेरियस अदर थिंग्स, ऑब्स्टिनेट, और ये सब कंसिडर करने के बाद ये रूब्रिक्स जो हमने सामने लिए वो आप देखिए, चिली था, स्वेट्स था, और ये इंपॉर्टेंट था, और टिमिडिटी, सेंसिटिविटी, यील्डिंग, कॉन्फिडेंस लैक ऑफ, एंटिसिपेशन, स्टेज फियर, और ये जितने फियर्स हैं ये इसके अंदर सामने आए. And this was the repertorization done. Silesia 200 was given in this, and you can see the first and second follow-up, third follow-up तक ये patient के पूरे बाल आ गए. T4 देखिए 8.2 आ गया, 8.25, and you can see the before and after symptoms of everything has subsided. हमारे इसके जो T4 के symptoms हैं वो भी normal हो गया, और 12.12 से 8.12.5 तक आ गया. You can see the sea change in this. We don't need allopathic or any other treatment. Homeopathy is good enough for everything. तो थायराइड के अंदर we can definitely reduce thyroid, hyperthyroid हो, hypo हो, T4, T3, TSH, ये होम्योपैथिक दवाइयों से, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से बहुत जल्दी ये कम आते हैं. We don't have to go for any other treatment. Now, this is a very good case of hypermelanosis. Now, this case had come across to me with patient was a lot of, she was very conscious about her appearance. इसको पैची हेयर लॉस थे, पैची पिगमेंटेशन देखिए आप, हेयर फॉल तो था ही, पिगमेंटेशन की हालत देखिए, गाल देखिए इसके, कहीं ब्लैक है कहीं व्हाइट है, आप देख रहे हैं. She has undergone laser treatment, she has undergone various facials, and she has undergone so many bleaching and other procedures. इतना कुछ खराब करके ये होम्योपैथी में आए थे, इतना कुछ खराब करके. She has even taken treatment from the best of the dermatologists in Lucknow and gone to the top homeopathic doctors in Lucknow also. When she came to me, she was in tears कि सी डॉक्टर साहब देखिए मैं कैसे लगती थी और मैं कैसे हो गई हूँ, मेरा स्किन बिल्कुल ब्लैक हो गया है और मेरा पिगमेंटेशन इतना ज्यादा जो है वो इतना पैची पिगमेंटेशन हो गया है मेरा, इसका कुछ करिए डॉक्टर साहब. एंड व्हेन आई स्टार्टेड द ट्रीटमेंट, आई डिड द थायराइड प्रोफाइल, TSH has come to 6.71, which was never checked before, which was never checked. किसी ने चेक ही नहीं किया, सब ने अपना लेजर ट्रीटमेंट दिया, किसी ने स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट दिया, किसी ने आपका, अगर आप किसी सैलून वाले के पास जाएंगे तो आपको ब्लीच करेगा, फेशियल करेगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है वो कोई समझना नहीं चाहता. प्रॉब्लम हमारे थायराइड के अंदर है, TSH बढ़ा हुआ था इस केस के अंदर, और जब हम रूब्रिक सिलेक्शन किए इसके अंदर तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सामने की आई है वो है एफेक्शनेट एंड सिंपैथेटिक. ये दो चीज इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, very simple case, simple medicines. I'm not prescribing any rare medicine or something. It's a very simple medicine, and you see the result of simple medicines. Affectionate, sympathetic, and artistic aptitude. बहुत ही ज्यादा sympathetic थी वो, इतना sympathetic थी कि अगर वो कहीं जा रही है, she used to describe me कि अगर वो कहीं वो जाती थी, कहीं अगर रास्ते में कोई डॉग मिल जाए या उस तरह से, तो तुरंत उसको पानी पिलाना, उसको अगर किसी को चोट लग जाए तो उसकी नर्सिंग करना, ये सब वो करती थी. And she was so emotional, she used to cry so much, she always used to feel the pain of others. जैसे हमारे कार्सिनोसिन में भी होता है. कार्सिनोसिन एक दवा है हमारी, फोबिस्टर है हमारे एक किताब के अंदर, फोबिस्टर जिन्होंने कार्सिनोसिन हम डिस्क्राइब की है, which is very close to phosphorus, very close to phosphorus. We should read this carcinosin and phosphorus parallelly. Then we'll try to then we'll understand कि कैसे ये सब चीजें जो हैं pan out हुई हैं, और कैसे इसका artistic aptitude, she was very good in drawing, painting and other things. और जो physical generals की बात कर रहा था, desire of icy cold water and drinks, बर्फ खा लेती थी, ठंडा पानी चिल्ड चाहिए उसको, अगर कोई भी चीज उसको हो तो डायरेक्ट वो मुंह में ले लेती थी. This was a very indicative symptoms of various medicines.
जो हमने रिपर्टराइज किया, एंड द नंबर 1 मेडिसिन विच केम वाज फॉस्फोरस हैजकम। और फॉस्फोरस जैसे ही हमने इसको प्रेस्क्राइब किया, सारे सिम्टम्स एंड मेंटल्स देख के, और उसके बाद इसका इतना अच्छा रिजल्ट आया कि थायराइड TSH has come to 0.49, 0.49, and you can see the change. आप इसका स्किन का कॉम्प्लेक्शन देखिए, वो कितना चेंज हो गया, कितना अमेजिंग उसका इंप्रूवमेंट आ गया, इन स्पाइट ऑफ गोइंग स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट, लेजर ट्रीटमेंट, और इतना अच्छा क्लियर हो गया स्किन कि एवरी फीमेल वुड ड्रीम ऑफ कि ऐसा स्किन हो हमारा। आप देखिए क्या स्थिति थी, हाउ शी वॉज and how she is. A sea change in this, and you can see the complexion has also improved of this patient, and this is the reports 6.71 to 0.49. This is the sea change in thyroid profile. Now I'm coming to another case because time is less. I'll go a little fast. जैसे मैंने आपको एक चीज समझाया था, बताई थी मैंने आपको कि थायराइड प्रोफाइल के अंदर जब भी थायराइड डिसबैलेंस होता है तो हमारे पास साइकेट्रिक सिम्टम्स आते हैं, स्पेशली फीमेल्स के अंदर। ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंटीसिपेटरी एंजाइटी, कहीं पे भी अगर आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो, किसी को भी पेशेंट को दिखे, तो सबसे पहला टेस्ट अगर आपको कराना है तो आपको थायराइड प्रोफाइल कराना है। और अगर कहीं भी हेडेक और माइग्रेन की बात आती है, जैसे आपको इस केस के अंदर है, इसका थायराइड फंक्शन टेस्ट 6.03 था, TSH was 6.03, सिवियर बर्स्टिंग हेडेक, एक्सट्रीम डिप्रेशन, सैडनेस, एंजाइटी, लॉस ऑफ स्लीप। सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर समझना है जो हमें, कि पेशेंट्स एक तो सुबह उठ नहीं पाता, सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है, और रात को उसको नींद नहीं आती है, तो दे स्लीप very late at night. So in the same way they get up very late. Okay, और जैसे ही जब उठेंगे ये, तो इनका सर भारी रहेगा। उठते हैं हम लोग, जब जनरली सो के उठते हैं तो हम लोग का सर, वी आर फ्रेश, हमारा सर हल्का होता है, और रात को जब हम लोग जाते हैं, थक जाते हैं, तो सर एकदम भारी होता है, सोने का मन होता है। और लेकिन थायराइड हाइपोथायरॉइडिज्म में ये उल्टा होता है, वी रिवर्स दिस। और इसमें क्या होता है, सुबह उठने का मन नहीं करेगा, स्वेलिंग फेस पे, सुबह उठेंगे चेहरा एकदम पफी लगेगा, एकदम स्वेलिंग लगेगी, पैरों में स्वेलिंग लगेगी, और ये सिम्टम्स इसके अंदर आके जब एंगर सप्रेशन, लोथिंग ऑफ लाइफ, कंसोलेशन एग्रीवेट, डिजायर सॉलिट्यूड, ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब हुआ कि जो पुरानी गलत चीजें या गलत एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं इसको, वो ही हम जो है वो उसको रिमाइंड करती रहती है। शी कंटिन्यूअसली ड्वेल्स ऑन देम, she continuously reminds of this, तुमने ऐसे कहा था, तुमने ये चीज हुई थी, इसने मुझे ऐसे कहा था। they never forget things. वो कोई भी चीज अगर 30 साल पुराने भी हो तो वो कहेंगे कि आपने ये चीज गलत मुझे को इतने साल पहले कही थी, यहाँ पे कही थी। तो ये सिम्टम्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ग्रीफ कैन नॉट क्राई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपको दुख तो है लेकिन आपके आंख से आंसू नहीं आता। See, venting out anger is also very important. अगर हम किसी पे गुस्सा हैं तो हम गुस्सा अपना निकाल दें, अगर अंदर रखेंगे एंगर सप्रेशन होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसी तरह ग्रीफ है, अगर हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है, अगर हम रो देते हैं तो हम वी वेंट आउट अवर ग्रीफ, हम अपना दुख जो है वो बांट लेते हैं, हमारा दुख अपना निकाल लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इन दिस केस when repertorization was done, Natramur was prescribed and she cannot cry. She was introvert, कम बोलना, चुप रहना, रिजर्व रहना, अंतर्मुखी होना, अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाना, कोई फ्रेंड्स नहीं होना। These are prime symptoms of Natramur। और ये डिप्रेशन और ये सब चीजें बहुत ज्यादा आगे जब बढ़ती हैं तो इस केस में तो Natramur है। जब और सब चीजें बढ़ती हैं तो ऑरम ग्रुप में आता है, जिसमें सुसाइडल टेंडेंसीज एंड वेरियस अदर हमारे मटेरिया मेडिका में दवाइयां हैं जो इंडिकेटिव हो जाती हैं। बट इन दिस केस headache was much reduced depression, anxiety was reduced, and confusion, lethargy has reduced, and swelling has come down to a very good level. जो थायराइड प्रोफाइल 6.03 था, TSH वो 2.95 आ गया। ओके, एंड in the same way the patient has almost recovered from
माइग्रेन, मैं आपको एक चीज बता दूं, माइग्रेन में कोई कुछ काम करता है तो होम्योपैथी काम करती है, वरना कुछ काम नहीं करता। पेशेंट कीप्स ऑन टेकिंग पेन किलर्स, सिर्फ पेन किलर खाता है, नींद की दवा लेता है, और डॉक्टर्स उसको यही प्रेस्क्राइब करते हैं और सिर्फ साइड इफेक्ट झेलता है। मैंने कम से कम हजारों केसेस देखे होंगे जो पेशेंट, स्पेशली गांव के लोग, जिनको पेन किलर्स का, एनएसाइड्स का साइड इफेक्ट्स नहीं पता, उनको अचानक से सरदर्द होता है, वो रोज लैया चना की तरह पेन किलर खाते हैं, कॉम्बीफ्लैम खाते हैं, और उनका अचानक से देखा चेहरे पे सूजन आने लगती है, और आपका जो एडिमा होने लगता है, और पेशेंट का क्रेटिनिन बढ़ने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर ये चीज समझना है कि हमें इसमें होम्योपैथी ही काम करेगी। माइग्रेन का मतलब ही होम्योपैथी होता है। एंड टेकिंग पेन किलर्स ये बिल्कुल जहर है, बिल्कुल नहीं खाना है। और सबसे पहले अपने पेशेंट को ये चीज समझानी है कि हमें पेन किलर्स नहीं देना। नेक्स्ट, कमिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। और इस पेशेंट को, आप जैसे मैं कह रहा था ना कि होता क्या है कि पहले लोग डिफरेंट एलोपैथी में जाते हैं। जब आपको सिम्टम्स आते हैं थायराइड के, तो पहले ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगे, हड्डियां दर्द होंगी, नींद नहीं, एंजाइटी होगी तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, न्यूरो वालों के पास जाएंगे, वेरियस अदर, आप सिर्फ चक्कर लगाते जाएंगे। दिस केस इज वेरी इंडिकेटिव ऑल दिस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग केस। और इस केस के अंदर क्या हुआ था, बहुत ही जो है 10 साल का बच्चा था, 10 साल का बच्चा हैड कम फ्रॉम मोदी नगर, एंड इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या थी, मस्कुलर वीकनेस, लेथार्जी, टोसिस, आंख जो है वो ठीक से इसके बंद नहीं होते थे, और ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, टिंगलिंग, नमनेस इन फिंगर्स। और आप देखिए, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। ये जो फर्स्ट रिपोर्ट है, ये कोई डॉक्टर अशोक कुमार हैं, मेरठ साइड के ही हैं, और इन्होंने डायग्नोस किया। इन्होंने कहा कि आप इसका टेस्ट करा लीजिए, ठीक है। सम अदर डॉक्टर इन मेरठ, नॉट मी, ओके, सम अदर डॉक्टर इन मेरठ, उन्होंने एडवाइस किया कि आपके ये जो सिम्टम्स हैं, आप एक बार थायराइड प्रोफाइल कराइए, ठीक है। डॉक्टर अशोक कुमार, जो भी डॉक्टर हो, उन्होंने सही टेस्ट किया, करवाया, लेकिन उनकी पेशेंट जो है वो एलोपैथी डॉक्टर्स पे ज्यादा ट्रस्ट करता है। आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस देखिए, तो उन्होंने इन डॉक्टर की बात नहीं मानी, वो एलोपैथिक डॉक्टर्स के अंदर चले गए। और आप इधर देखिए, आप कितनी जो है चीजों पे टेस्ट करा लिया इन्होंने, जो भी डॉक्टर साहब हैं एलोपैथ के, इवन विटामिन, ESR, RA फैक्टर, कैल्शियम, वेरियस टेस्ट वाज डन इन दिस केस। आप देखिए, इवन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वाज डन इन दिस, न्यूरो तक का टेस्ट करा दिया, EEG करवा दिया। आप देखिए, आप बस पहले आप पीडियाट्रिशियन के पास गए, फिर न्यूरो के पास गए आप, और होम्योपैथिक डॉक्टर ने आपको बताया कि आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, थायराइड टेस्ट कराया, रिपोर्ट में भी बढ़ा हुआ है, बट नोबडी बॉदर्ड टू अंडरस्टैंड दैट। किसी ने सुना भी नहीं, किसी ने नहीं सुना। और आप देखिए इसके अंदर फिर क्या शुरू हो गया, मायोटोनिया शुरू हो गया, मस्कुलर जो है ट्विंगलिंग नर्वनेस शुरू हो गई इस पेशेंट के अंदर। देखिए कितने टेस्ट कराए हुए हैं इसके अंदर, सो मेनी टेस्ट वर डन, जिसका बहुत रेलेवेंस इसके अंदर नहीं है। एंड सी, दिस इज अ तारा किड्स ग्रोथ, दिस पीडियाट्रिशियन हैज सीन दिस केस, न्यूरो को पहले ही दिखा चुके हैं वो, अब ये MRI सर्वाइकल स्पाइन करा दिया। जस्ट सी इंप्रेशन, आप देखिए, इसको सर्वाइकल लॉर्डोसिस शुरू हो गई। एक चीज जरूर समझना है, जो मैंने आपको बताया था, जब भी थायराइड की प्रॉब्लम आती है, कैल्शियम हड्डियों से निकलता है और हमारे यूरिन और ब्लड से बाहर जाता है, तो हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, तो हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है वो भी गड़बड़ होता है। कभी लॉर्डोसिस हो जाएगा, कभी टोसिस होगा, कभी टेटनी होगा, ये सब चीजें होंगी, और ये सारे सिम्टम्स हमें सामने आएंगे। एक डॉक्टर ने तो देखिए कंजेनाइटल मिस्थेनिया ग्रेविस लिख दिया, आप ये रिपोर्ट के अंदर देखिए, जो सेकंड रिपोर्ट है। और आगे देखिए, हेपेटाइटिस बी वाज डन, HIV AIDS एंटीबॉडी, एवरीथिंग वाज डन ऑफ दिस, प्लेटलेट काउंट, शुगर, एवरीथिंग वाज डन इन दिस। CPK वैल्यू भी कराई गई, PNS भी कराया गया। सब कुछ कराने के बाद
जब अल्टीमेटली ये देखिए, ये कोई डॉक्टर साहब है, उनका जो ये पर्चा है, और स्पीच डिलेड, क्राई डिलेड, मतलब ये सारे सिम्टम्स इसके अंदर इन्होंने लिखे हुए हैं। बट जो होम्योपैथिक डॉक्टर ने थायराइड जो टेस्ट कराने के लिए कहा गया, वो चीज नहीं उन लोगों ने कंसिडर किया, ना ही उसको रिपीट कराया, उसको थायराइड को रिपीट भी नहीं कराया। ये भी समझने वाली बात है। तो जब ये केस मेरे पास आया, आई डिड द होल केस टेकिंग, और इसके अंदर रिपर्टोरियल टोटलिटी में टिमिडिटी, यील्डिंग, इरेजोल्यूट, delusion hear voices, delusion talking to dead parents, grandparents, उसको लगता था कि उसके दादी बाबा जो मर गए हैं उनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। वो कभी उनको भ्रम भी होता था कि वो कभी खड़े हुए हैं, कोई आवाजें आ रही हैं। और सेंसिटिविटी, पर्सपिरेशन, पाम एंड सोल्स, टिमिडिटी, इरेजोल्यूट, ये देखिए आप, इतने डिल्यूजन्स, इतने टिमिडिटी, एक तरफ सिम्टम्स जो आपके कैलकेरिया और साइलिशिया की तरफ जा रहे हैं। और आप जब इसको डिपर्टाइज किया हमने, तो विच मेडिसिन्स विद टॉप 3 मेडिसिन्स विच केम वाज कैलकेरिया सिलिकेटा, नाट्रम्यूट एंड इग्नेशिया, एंड आई प्रेस्क्राइब कैलकेरिया सिलिकेटा इन दिस। जब ये पेशेंट सब कुछ करने के बाद मेरे पास आया, मैंने केस टेकिंग की, मैंने रिपर्टाइजेशन किया, मैंने इसको कैलकेरिया सिलिकेटा दवा दी 30 के अंदर, तो कुछ नहीं, इसका धीरे धीरे इसका मस्कुलर वीकनेस कम हुआ, वो पेशेंट काफी एक्टिव हो गया, टोसिस में आराम मिल गया, टिंगलिंग नमनेस थी, और फिंगर्स जो इसके थे जो एकदम नम हो गए थे, वो अब बेटर होना शुरू हो गए। और आप देखिए यहाँ पे जो थायराइड प्रोफाइल जो डॉक्टर अशोक कुमार BHMS साहब ने किया, ये 6.64 था। और ये देखिए, ये मैंने जब मैंने वापस अपनी दवा देने के बाद TSH कराया, जो TSH करा डॉक्टर निशांती, आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने प्रेस्क्राइब किया था टेस्ट, और 3.71 आ गया। और जब आप देखिए 10.59, ये डॉक्टर अशोक कुमार साहब जो इन्होंने पहले कहा था कि ये थायराइड की प्रॉब्लम है, और इन्होंने क्या किया, वहां पे मेडिकल कॉलेज में, एम्स के अंदर और भी जितने पीडियाट्रिशियन है, साइकेट्रिस्ट हैं, इवन MRI, EEG, न्यूरो, सबको दिखा लिया, लेकिन होम्योपैथ के बाद की बात नहीं मानी। तो उसके बाद जब ये मेरे पास आए, तो मैंने सब कुछ, सारी रिपोर्टें देखी, और उनमें से एक रिपोर्ट ये डॉक्टर अशोक कुमार की मिली। तब मैंने कहा कि ये खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ठीक है। तो सीधे सीधे मैंने इसको डायग्नोस किया, इसका केस टेकिंग किया, रिपोर्टाइज किया, रिजल्ट आया, पेशेंट बेटर फील हुआ। जो पेशेंट घर के अंदर था, स्कूल नहीं जाता था, पैर नहीं उठा पाता था, अब चल नहीं पाता था, अपने स्कूल का बैग नहीं उठा पाता था, वो नॉर्मली आज के टाइम में स्कूल जा रहा है। और विद इन 2 मंथ्स ये रिजल्ट आया कि इतना अच्छा इंप्रूवमेंट आया, एंड द पेशेंट हैज गॉन बैक टू हिज ओरिजिनल लाइफ। इतना हम लोग जो है थायराइड को हम कंसिडर नहीं करते हैं, और हम इसको तवज्जो नहीं देते हैं, इसकी रिपोर्ट नहीं कराते हैं। तो हमारे आज का सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जितनी भी बीमारियों के बारे में मैंने बताया, चाहे वो स्किन की प्रॉब्लम हो, चाहे साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो, चाहे आपके हेयर की प्रॉब्लम हो, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम हो, फीमेल्स की, प्रेगनेंसी की, डिप्रेशन, एंजाइटी, सबसे पहले कोई टेस्ट कराना है तो थायराइड प्रोफाइल कराना है सबसे पहले। क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट यू हैव सीन कि देयर इज अ थायराइड डिस्क्रिपेंसीज इन द पेशेंट। और जब हम इस चीज को अंडरलाइन करेंगे, इसको समझेंगे, तभी हम थायराइड को जो है टेस्ट करेंगे, और हम अपनी चीजों को सामने ला पाएंगे। क्योंकि जनरली एक ओपिनियन बन गया है कि जैसे डायबिटीज में है, BP में है, उसी तरह थायराइड में, कि थायराइड में क्या होता है कि भाई दवा शुरू हो गई है, अब तो आजीवन खानी है, अंतिम सांस तक खानी है। तो ये भ्रम को हमें तोड़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर हम, और कोई भी पैथी अगर तोड़ सकती है तो वो सिर्फ होम्योपैथी तोड़ सकती है। इतने केसेस मैंने आपको दिखाए कि सबके अंदर कितना आसान से थायराइड अपना कम होना शुरू हो गया, चाहे वो T3 हो, T4 हो, TSH हो। हम होम्योपैथी का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इन थायराइड डिसऑर्डर्स। और
ये मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, ये अप्लाइड मटेरिया मेडिका कैलकेरिया और कैलकेरिया सिलिकेटा के अंदर सिलिशिया, कैलकेरिया सिलिकेटा जो है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, it's a straight line, draw a straight line between calcarea and silicea, you will come to calcarea silicata. Image conscious silicea, particular standard of life, हमें एक लाइफ का मेंटेन करना है, लोग क्या कहेंगे, और हमें एग्जाम पे परफॉर्म करना है, एंटिसिपेटरी एंजाइटी, स्वेटिंग पाम एंड सोल, लीन चिली, और उसी साइड में इनसिक्योर, क्लिंगिंग नेचर जो कैलकेरिया का है, फियर ऑफ पॉवर्टी, फाइंडिंग एक्सक्यूजेस ऑफ फेलियर। कैलकेरिया का सबसे बड़ा है कि वो अपने फेलियर का, मैंने ये आप उससे कोई भी सवाल पूछिए, ही इज रेडी विद एन एक्सक्यूज कि भाई ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, अगर ये कंडीशन होता तो शायद मैं कर लेता, यही चलता है। दे आर मास्टर्स इन गिविंग एक्सक्यूजेस। आई हैव गॉट सो मेनी फ्रेंड्स हु आर कैलकेरिया का एंड they just don't perform because of the habit of giving excuses. So delusion is also very important, and irresolute, indecisive nature of calcarea, and this whole thing calcarea silicata was given, and I want to tell you this कि last moment में कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। Thank you everyone. I hope the time is more than 5 o'clock, and yes. Dr. Nishant ji, wonderful, again a wonderful presentation as always, and the audience have been really appreciating your efforts. Now I have a few questions for you. मैंने कुछ questions read किए हैं and I will just frame it for you. क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपकी जितनी भी आपने केस स्टडीज दिखाई हैं उसमें आपने थायराइड को बहुत इंपॉर्टेंस दी है और आपने कहा कि थायराइड टेस्टिंग बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन जो फ्रेम हो रहा है वो ये होता है कि थायराइड टेस्टिंग जो है वो कैसे कराई जाए, सेकेंड उसके बेसिस पे कैसे हम होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं, एंड थर्ड अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी थायरोनॉम या कोई भी थायराइड ले रहा है एलोपैथी का, उसको विड्रॉ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। और सबसे पहले तो हमें थायराइड प्रोफाइल कराना चाहिए, ठीक है? थायराइड प्रोफाइल तो बहुत जरूरी है, साथ में फ्री T3 T4 भी आप करा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेल इंडिकेटेड। सेकेंड चीज जो मैं आपके अंदर जरूर आऊंगा सेकेंड क्वेश्चन के अंदर, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रेस्क्राइब कैसे करना है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मैंने पहले बताया कि पैथोलॉजिकल दवाइयां भी असर करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर हमें परमानेंट क्योर चाहिए कि हम थायराइड को जड़ से ठीक कर पाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना बहुत जरूरी है। तो केस टेकिंग करना, रिपोर्टाइजेशन करना, एनालिसिस करना, इवैल्यूएशन करना, ये बहुत ही जरूरी है। हम बिना उसके मेंटल समझे, फिजिकल जनरल समझे, पर्टिकुलर समझे उसको प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन डिफाइन करनी पड़ेगी और रिपोर्टाइज करना पड़ेगा, फुल केस टेकिंग करनी पड़ेगी, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और एक चीज और बता दूं, जो एक्यूट मेडिसिन जो लोग देते हैं, थायरोडिनम देते हैं, कैलकेरिया आयोड और आयोडम और ये वो, दे विल हेल्प यू फॉर सर्टेन टाइम, एक पर्टिकुलर लेवल तक आपको हेल्प करेंगी, लेकिन आगे अगर आपको परमानेंट क्योर है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही देना पड़ेगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड चीज जो बहुत, थर्ड जो सवाल आपका था वो ये था कि हमें क्या तुरंत विड्रॉ करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है और बहुत जरूरी है और हर डॉक्टर को समझना चाहिए, स्पेशली होम्योपैथिक डॉक्टर को समझना चाहिए। होम्योपैथिक डॉक्टर्स इतना गड़बड़ करते हैं कि हम आपको बता नहीं सकता हूं मैं। ये तो चलिए थायराइड है, जब कभी कोई डायबिटीज का पेशेंट आता है, बीपी का पेशेंट आता है, तो अचानक से जो पेशेंट 20 साल से डायबिटीज की दवा ले रहा है या थायराइड की दवा ले रहा है, अगर आप थायराइड की दवा अगर आप उसको इंस्टेंट रोक देंगे, इंस्टेंट, ठीक है, अगर आप इंस्टेंट रोक देंगे तो पेशेंट की बहुत हालत खराब हो जाएगी। उसी तरह अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड ले रहा है, बीपी की दवा ले रहा है, शुगर की या थायराइड ले रहा है, तो तुरंत तो नहीं रोकना है, फॉर गॉड सेक। और यही हमारी होम्योपैथी डॉक्टरों की बहुत ज्यादा जो है बदनामी भी होती है, ये मैं बता दूं, है ना। हम अपनी दवाइयों को देते हैं और कहते हैं आप सब बंद कर दो, ऐसे नहीं होता है भैया। एक चीज होती है टेपरिंग ऑफ डोज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर्स, देयर इज कॉल्ड अ टेपरिंग ऑफ डोज। इफ योर बॉडी इज यूज्ड टू टेकिंग सर्टेन थिंग्स, जैसे एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां हैं, एंटी एंजाइटी की दवाइयां हैं,
अगर आपने इनको अचानक से अगर तुरंत बंद कर दिया तो पेशेंट इतना परेशान हो जाएगा वो आपके पास वापस नहीं आएगा। तो इसमें हमें टेपरिंग की जरूरत है। टेपरिंग का मतलब पहले आप दोनों चलाइए, जब आपके लेवल्स जो है कंट्रोल होना शुरू हो जाए तब आप धीरे धीरे एलोपैथिक जो आपकी थायराइड की दवाइयां हैं उसको धीरे धीरे कम करिए। जैसे ये बढ़ाते हैं 25, 50, 75, 100, वैसे ही हमें कम करना है 100, 75, 50, 25। तो हमारे दिमाग में ये डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारी बीमारियों के जिसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चल रहा हो तो तुरंत नहीं रोकना है, स्लोली ठीक करना है। होम्योपैथी दवा को असर होने दीजिए, उसका टेस्ट कराइए, जब रिपोर्ट नॉर्मल आए तब एलोपैथिक दवाइयां बंद नहीं, टेपरिंग करिए, टेपर करिए, धीरे धीरे कम करिए और फिर हमारा टोटली उसको होम्योपैथी पे लाइए और धीरे धीरे उसको फेज ऑफ करिए। और पेशेंट को ये भी बता दीजिए कि जब हम एक अननेचुरल सिस्टम से अगर हम नेचुरल सिस्टम पे आएंगे तो पेशेंट हो सकता है कुछ समय तक हमें परेशान हो, कुछ दिक्कतें भी आए, लेकिन हमें वो चीज हम बेयर करेंगे तो हम एक बार में ये सब चीजों से निकल के बाहर आएंगे और हम लाइफ लॉन्ग इस बीमारी से निजात पा पाएंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है और प्लीज सबको ये चीज बताइए आप, ठीक है? एनीथिंग एल्स? यस। डॉक्टर सुमिता जी का एक है फीडबैक कि इवन एंटीबॉडीज टेस्टिंग भी आप कर सकते हैं, एज समटाइम्स थायराइड प्रोफाइल भी नॉर्मल आता है। हाँ एंड हाँ, वो भी बहुत इंडिकेटिव है, वो काफी इंडिकेटिव है वो भी। लेकिन इन अ जनरल प्रैक्टिस अगर हम ऐसा होम्योपैथिक देखें तो थायराइड प्रोफाइल और फ्री T3, T4, TSH अगर हम ये डिफाइन कर लेंगे, एंटीबायोटिक टेस्ट भी करवा सकते हैं आप, लेकिन इतने में ही सब कुछ चीजें क्लियर हो जाती है, मोर ऑफन देन नॉट, ठीक है? राइट। Anything else? Yes, doctor. There's a question that which is the best potency to be given? Dr. Shraddha is asking, which is the best देखिए, potency? अगर हम this totally depends on the case, ठीक है? ये मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से कर रहा हूँ। आपका केस जो है, अगर आपका केस जिसमें आप मान लीजिए आपने केस चेकिंग की जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट फैक्टर्स हो, आपके हायर मेंटल सिम्टम्स हो, अगर आपके हायर मेंटल सिम्टम जैसे ड्रीम्स, डेल्यूजन, ठीक है, डिलीरियम, अगर ये सब चीजें हैं, एलिमेंट फैक्टर आपको कोई स्पेसिफिक मिल गया तो यू कैन डेफिनेटली गो। हायर मेंटल सिम्टम्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेंटल सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो यू कैन स्ट्रेट अवे गो टू द हाइपोटेंसी, ठीक है? और लेकिन अगर पेशेंट यंग है, एजेड है, ठीक है, आप पेशेंट अगर कंफ्यूज्ड है, आपको ठीक से मेंटल स्टेट नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज डोंट गो फॉर हायर पोटेंसी, स्टार्ट विद द लोअर पोटेंसी। एंड एक चीज और मैं बता दूं, आपका केस खुद बताएगा आपको कि आपकी क्या, आप केस में क्या रिक्वायरमेंट है। अगर फिजिकल जनरल्स, अगर पर्टिकुलर्स है, मेंटल्स कम है तो लोअर में रहिए या मिडिल में रहिए, अगर हायर है तो हायर में जाइए। अगर आप उसी हिसाब से, अगर आपको कहीं माइजमेटिक ब्लॉक दिखता है, आपको लगता है कि केस कहीं पे भी रुक रहा है तो एंटी माइजमेटिक मेडिसिन भी आप दे सकते हैं, और एंटी माइजमेटिक मेडिसिन जनरली हाई पोटेंसी की होती है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हमें ये भी समझना है कि अगर हम 30 से शुरू करते हैं तो वी हैव गॉट अ वाइड रेंज ऑफ हम आगे भी सोच सकते हैं, 200, 1M, 10M, ऐसे हम जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द केस। अगर हम शुरू ही 1M, 10M से करेंगे अगर, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हमारे पास एरिया ऑफ फील्ड थोड़ा कम हो जाता है। तो आई थिंक 200 इज अ वेरी गुड पोटेंसी जिसमें हम मिड में रहते हैं, विच इज सपोज टू बी द मीडियम पोटेंसी। और अगर हम 200 से भी शुरू करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर केस। यस, डॉक्टर संचिता जी का क्वेश्चन है, सम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स फॉर हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म जी। और एक और क्वेश्चन है कि इफ द पेशेंट इज प्रेग्नेंट कैन वी रिकमेंड द सेम वे ऑफ ट्रीटमेंट? यस, देखिए, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है उसका कंटिन्यूअस टेस्ट कराइए। अगर वो टेस्टिंग आपका कंट्रोल कर रहा है देन यू कैन गो अहेड, नो प्रॉब्लम। देखिए, हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, हम उसका थायराइड जो है पेशेंट का वो नॉर्मल होना चाहिए, वो पर्टिकुलर लेवल्स के अंदर होना चाहिए। अगर वो कम है, मान लीजिए आपकी दवा से कंट्रोल नहीं हो रहा, या अगर हो रहा है तो यू कैन कंटिन्यू विद द केस।
अगर आपकी दवा से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो क्योंकि देयर इज अ लार्जर रिस्क, प्रेगनेंसी में देयर इज अ लार्जर रिस्क, तो क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर थायराइड वैसे भी ड्यूरिंग हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत फ्लक्चुएशन होता है थायराइड लेवल का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग कंसेप्शन, ठीक है। तो हम बच्चे का रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपकी दवा से अगर कंट्रोल है तब तो यू कैन कंटिन्यू, अगर कंट्रोल नहीं है तो प्लीज डोंट टेक रिस्क, डोंट डू एनी एक्सपेरिमेंट। अगर वो एलोपैथी से ही है तो इट्स बेटर एक बार प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाए, पेशेंट को आप फिर बुलाइए और उसको पूरा समझाइए कि जब वो प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगा देन स्टार्ट द ट्रीटमेंट। क्योंकि थायराइड लेवल्स आपके बच्चे के डेवलपमेंटल में बहुत काम करता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में जैसे मैंने बताया बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। तो हम एट दिस जंक्चर वी कैन नॉट टेक रिस्क एट द कॉस्ट ऑफ द चाइल्ड, ओके। तो लेवल्स नॉर्मल होने चाहिए, एलोपैथी हो होम्योपैथी हो वो हम बाद में देखेंगे, पहले प्रेगनेंसी क्लियर हो जाए उसके बाद आप पेशेंट को बुलाइए, एडवाइस करिए और पेशेंट को बुलाइए कि जब ये खत्म हो जाएगा देन आई विल स्टार्ट योर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस। अगर कंट्रोल है तो यू कैन कंटिन्यू, ठीक है। दूसरी चीज जो इन्होंने सवाल पूछी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन तो हम सब जानते हैं कैलकेरिया का बहुत अमेजिंग काम करती है। मोर ऑफन देन नॉट लेथार्जी, वीकनेस, स्वेलिंग, आप ऐसे ही सोचेंगे कि मेंटली जो है वो लेथार्जिक होता है, एग्जॉस्शन होता है, तो अपने आप कैलकेरिया ग्रुप विल कम इन फ्रंट, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया आयोड, देयर आर एन नंबर ऑफ मेडिसिन। और अगर थायराइड की बात करते हैं स्पॉन्जिया बहुत अच्छा काम करती है, नेट्रम ग्रुप इज आल्सो वेरी वेरी एन नंबर ऑफ मेडिसिन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी तो बहुत इसीलिए होती है कि इसको थायराइड को जड़ से ठीक किया जाए। यस, एनीथिंग एल्स? हेलो? Yeah, sir, there are questions. Any miasm role will Yes, play during the treatment? I can't hear you, please. Any miasm role will play during the treatment? डेफिनेटली, आई टोल्ड यू, मैंने अभी जो बात की थी, अगर कोई माइजमेटिक ब्लॉकेज है ना, तो यू कैन गिव माइजमेटिक। देयर आर एन नंबर ऑफ मेडिसिन, जैसे आपके ग्लैंड्स अगर स्वेलिंग है उसके अंदर तो थूजा इज अ वेरी गुड इंडिकेटर, एंड बैसिलिनम, मेडोराइनम हाइपोटेंसी में देना है। मैंने आपको ये मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। व्हेन देयर इज अ माइजमेटिक ब्लॉकेज, आपको लग रहा है आपकी दवा सही है, काम कर रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे जाके वो रुक जा रही है, तो डेफिनेटली शुड गो फॉर अ माइजमेटिक ब्लॉकेज को हटाने के लिए यू शुड गो फॉर इट, यस, इन द हायर पोटेंसीज। Okay, there is a question from Dr. Neha. Bromine and iodine in hypothyroidism. Maybe what's the role? I can't hear. Please Bromine repeat the and question. iodine in hypothyroidism. Bromine and iodine. Yes. Or halogen groups. Halogen groups are highly indicative. But one thing is for sure. But don't go for all this because they are indicative. लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आयोडम जो है वो क्लियर कट पिक्चर है आपके थायराइड का। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर थायराइड, वी ऑल नो अबाउट दैट। लेकिन आई विल ऑलवेज सजेस्ट एक्यूट मेडिसिन वो ठीक है, but go for a constitutional medicine with full repertorization, analysis and evaluation of the case with full case taking. Then only you will be able to eradicate thyroidism for good, you know. Yes. There is a question from Dr. Aparna. Many times hypothyroidism is treated by homeopaths, but exothalamus is not treated. What can you say for that? Yes, होता है, बहुत कॉमन है exophthalmos because there is already it has gone beyond physiology. It has gone beyond physiology. अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंज हो गया है तो उसको ठीक होने में बहुत टाइम भी लगता है, समय भी लगता है, और कुछ केसेस में वो ठीक भी नहीं होता है। अगर देयर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज, तो स्ट्रक्चरल चेंज अगर होता है, अगर सिफिलिटिक के अंदर हम माइजम में अगर हम आ गए, स्ट्रक्चरल चेंज जैसे साइकोसिस हो गया, अगर हम तो उसको रिवर्ट करने में कुछ टाइम भी बहुत लगेगा, हो सकता है न भी हो, तो ऐसा होता है। यस, इट हैपेंस एंड बहुत से केसेस में रिस्पॉन्ड भी कर जाता है। अगर एक्सोफ्थैल्मस अगर इनिशियल केसेस में है, अगर शुरुआत में अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो एक्सोफ्थैल्मस भी ठीक होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाता है देन देयर आर कंडीशंस, थोड़ा इट्स डिफिकल्ट टू रिवर्ट बैक। यस।
Okay, there's a question from Dr. Sumita. She says that she had a case who got better with Calcarea Carb 200, but after some months again TSH has increased as didn't take medicine during lockdown. So what Yes, can this be is done? very common. Yes, this is very common. That is what I was telling you. अगर तो सबसे पहले the first thing that you should do is जो whatever the case you have taken, constitutional medicine 200 में अगर दी है तो उसका step up करिए, 1M करिए, उसका repetition change करिए according to the case. Second, miasmatic blockage है तो आप miasmatic blockage भी आप वो हटा सकते हैं higher potency देके, और जो आप हमारी एंटी माइजमेटिक मेडिसिन दे वर्क वेरी वेल. और दूसरी चीज क्या है कि आप हो सकता है देयर कैन बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल शिफ्ट आल्सो. कैलकेरिया कार्ब, साइलिशिया, सल्फर एंड लाइकोपोडियम, ये तो ट्रायंगल है, दीज आर ट्रायंगल ऑफ मेडिसिन. तो कॉन्स्टिट्यूशनल शिफ्ट भी हो सकता है. जरूरी नहीं कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट कैलकेरिया में ही रहे. कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट इट कैन गो टू लाइकोपोडियम आल्सो, इट कैन गो टू सल्फर आल्सो. तो कॉन्स्टिट्यूशनल शिफ्ट का भी ध्यान रखें. वापस से केस टेकिंग करें, वापस से केस एनालिसिस करें, वापस से रिपोर्टाइजेशन करें. एंड इफ देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल शिफ्ट, प्लीज गिव दैट मेडिसिन देन. तो वो कैलकेरिया कार्ब विल नो लॉन्गर वर्क फॉर दैट. तो आप जो नया रिपोर्टाइज किए हैं आप उसको दवा को आप दीजिए. Yes, anything else? Yeah, what's the role of thyroidinum 3x? Yes, मैंने आपको बताया कि it is a pathological prescription में people very commonly give, और it has got efficacy also. There are so many research papers which have been written on thyroidinum, and more often than not it has reduced T3, T4, TSH पे बहुत अच्छा काम है. It has been proved, and doctors are giving blindly. It has proved. लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, ये सब चीजें पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन विल हेल्प यू टिल सर्टेन लेवल. at the end of the road you have to come to the constitutional medicine. अगर आपको परमानेंट क्योर करना है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम तक, जब तक पेशेंट खाएगा तब तक वो कंट्रोल रहेगा. छोड़ देंगे आप, वो फिर कम हो जाएगा. तो वी आर ऑलमोस्ट लाइक सप्रेसिंग द मेडिसिन, सप्रेसिंग द डिजीज एक्चुअली बाय आवर मेडिसिन, राइट. तो हमें ये नहीं करना है. हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देनी है. और अगर आपको अगर कभी लगे कि बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है तो कुछ टाइम आप दे भी सकते हैं, बस कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इज मोर इम्पोर्टेंट. यस. There is a question from Dr. Aparna. She says that when you have to do constitution shift and when to do it, when the remedy doesn't work, how long should we wait? You at least you have to wait for good amount of time. At least आपको एक और दो आपको टेस्ट तो कराना ही पड़ेंगे, at least 2-3 महीने. If you have to be sure about your prescription, you have to wait and watch. हमें वेट करना पड़ेगा, 2-3 महीने उनको देखना पड़ेगा, कंटिन्यूअस थायराइड के लेवल्स चेक करने पड़ेंगे. और अगर एटलीस्ट 2 to 2.5 months you have to wait. और सिम्टम्स एटलीस्ट चेक फॉर द फिजिकल जनरल्स. अगर आपकी दवा सही होगी तो कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे कहीं ना कहीं आपको आराम मिलेगा. द पेशेंट विल फील बेटर. दैट इज अ ग्रेट इंडिकेटिव ऑफ इट. जैसे आपके एंजाइटी लेवल्स कम होंगे, आपका डिप्रेशन लेवल कम होगा, आपका हेयर फॉल कम हो सकता है, आपके स्किन की ड्राइनेस, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स. ये सब आपको इंडिकेट करेगा कि आपकी जो आपको कौन सी दवा सूट कर रही है. अगर दवा सूट कर रही है तो एट पर्टिकुलर लेवल, at some level it will show its indication the patient will be relieved. अगर उसको relief है, that means your medicine is working. Testing is not the only thing. For God's sake, please understand, हम homeopaths हैं. Homeopathy is a science of symptomatology. ठीक है, symptoms की पैथी है ये. हमें symptoms पे पकड़ना है. हमें टेस्टिंग वेस्टिंग एक बहुत अच्छी चीज है, हमें कराना चाहिए, लेकिन हमें अपने symptoms के ऊपर विश्वास होना चाहिए. सारे सिम्टम्स हमें इक्वल लेने हैं और उसका कितना परसेंट रिड्यूस हुआ, 3 मार्क्स से वो 2 में आया, 2 से 1 में आया, हमें पूरा उसको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे वो रिडक्शन हो रहा है, और उसी के बेसिस पर डिसाइड करना है कि कौन सी मेडिसिन सही है, कौन सी मेडिसिन गलत है. यस. Okay, I think Anything there's one. Yeah, Rajneesh. I think that's enough for today because the questions will not stop. Right. Yeah, and we have certain time constraint also, doctor. Definitely, so definitely. once again thank you. It was again Dr. Nishant, it was a wonderful session. Already एक और webinars की आपसे request आ चुकी है कि आप renal के ऊपर भी एक webinar लें.
that बिल्कुल somebody लेंगे, had बिल्कुल. requested. And let me tell you, today we were, it was a full house. It was a full house. Okay. Abhi bhi, I think there are some 80 people who are online. So it shows that आपका कितना बढ़िया आपका presentation रहा sir, as always. Thank you. Thank you. Thank you so much Thank you. for being a part of this webinar. Once again, My pleasure. My pleasure. My pleasure. I thank Dr. Nishant ji. I thank everybody. I thank Ishmeet. I thank all the audience who have joined today. And if you want to conduct any webinar, please get in touch with Ishmeet or me. You can contact us at our mobile number 9910081920 and 9599969785. I believe all doctors must have shared their details in the chat window for digital certificates, because otherwise it is very difficult for us to monitor to who all have attended. So I believe that in case you have missed it out, you can share your details directly to me. Thank you so much. Thank you, Dr. Nishant. Upcoming webinar or yeah, tomorrow we have a Facebook Live with Dr. Tamanna Kochar on depression, which is a very serious topic these days. Or perso we have a webinar which would be shared. All the details will be shared soon, and the webinar is with Dr. Akshita Gupta from Delhi. So looking forward to see you there for tomorrow and day after tomorrow also. Thank you so much. Thank you, Dr. Nishant. Thank you everyone who all joined today. Thank you. Thank you.